Hallelujah! Hallelujah! How many of you are happy this evening? आज की शाम आप लोग कितने खुश हैं? आप लोग कितने खुश हैं? If you are happy, you will shout aloud, Hallelujah! यदि आप खुश हैं तो आप बहुत बड़ा हालेलुया बोलेंगे। This is not enough. ये काफी नहीं है। This is enough only for 10 minutes. ये केवल 10 मिनट के लिए ठीक है बस। Hallelujah! It is such a wonderful thing to be gathered together from different parts of the country to worship the Lord. सच में ये बहुत ही अच्छी बात है कि हम भारत के हर एक कोने से यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। And God was eagerly looking forward to this moment. और परमेश्वर इस क्षण के लिए देख रहा है। Because He believes that He has something to tell you throughout the course of this camp. क्योंकि वो विश्वास करता है कि इस समय आपको कुछ ऐसा बताए जिसके लिए आपको यहाँ बुलाया गया है। How many of you came to receive something from God? और आप में से ऐसे कितने लोग हैं कि आप कुछ परमेश्वर से लेने यहाँ पर आए हैं? Can I see कितने your हैं hand? ऐसे लोग? Okay. How many of you came chumma? और जो कितने लोग यहाँ पर जो है You know, just like that. I want to see what is happening. तो मैं इस तरीके से ही मतलब कह रहा था कितने लोग यहाँ पर जो है चुम्मा लेने आए हैं। But God accepts everybody. और परमेश्वर सबको स्वीकार करता है। You know, even the chumma people God loves. यहाँ तक कि चुम्मे वाले लोगों को भी परमेश्वर प्यार करता है। So you look at the person sitting next to you, find out if he came here expecting something or chumma. और आप जो अपने पड़ोसी से देख के कहें कि वो क्या लेने आया है, क्या एक चुम्मा लेने तो नहीं आया कहीं? Come on, you ask him, hey, you came here for what? और उससे पूछे, अरे तू किस लिए आया है? God doesn't disappoint His children. तो परमेश्वर अपने बच्चों को भी निराश नहीं करता। I believe in every single thing that happens here, God is going to speak to you. मैं इस पे विश्वास करता हूँ कि जो भी एक एक बात यहाँ पर होगी, परमेश्वर उससे आपसे बात करेगा। It is not just through the message and only during this time. केवल ये संदेश से नहीं, जो चीजें हम यहाँ पर कर रहे हैं केवल उसी से नहीं है। Even when we worship, even when we pray, even during our quiet time, God is able to speak to us. जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, जब परमेश्वर के वचनों से जब हम बात करते हैं और कुछ भी हम कर रहे हैं, इसमें हर एक चीज में आपको कुछ मिलेगा यहाँ से। It is not an easy thing to gather young people from all over the country. ये आसान बात नहीं कि जवानों को पूरे भारत देश से इकट्ठा किया जाए। And as we heard early in the evening, it took a lot of effort and a lot of hard work to bring all these people together. और सभी को साथ में लेके आने के लिए बहुत बड़ा परिश्रम किया गया है पीछे। And I'm sure God is keen to honor every single effort that has gone into this camp. और परमेश्वर सच में आदर करने वाला है हर एक व्यक्ति का जिसने भी इसमें काम किया है। And God wants to bless all the hard work that made this camp possible. और जितना भी कठिन कार्य किया गया इसके पीछे परमेश्वर उसका आदर करेगा। And the one thing that He wants to do is to speak to you.
और एक चीज जो आज वो करने वाले वो आपसे बात करने वाले हैं, minister to you, और आपके सामने सेवा करने वाले हैं, and then make you understand what he has to say to you. और आपको बताना चाहते हैं कि आखिर वो क्या आपसे कहना चाहते हैं। So with this in mind, we are going to pray and begin this evening. और इसी को ध्यान में रखते हुए हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। So I want you to take your right hand and keep it on your chest. और मैं चाहता हूं कि आप अपने सीधे हाथ को अपनी जो है छाती पे रखें, And then I want you to tell him, God, I just opened my heart to you. और आप कहें कि परमेश्वर मैं अपने दिल को तेरे लिए खोलता हूं, I want to receive something from you. और मैं तुझसे जो है कुछ पाना चाहता हूं। And when you speak to me, I will not only listen, but I will obey. और जब तुम मुझसे बातें करेगा, केवल मैं सुनूंगा नहीं बल्कि उसे मानूंगा भी। And tell him, Lord, give me ears that will hear your voice. और परमेश्वर तू मुझे ऐसे कान दे जो तेरी वाणी को सुने। If your prayer is sincere, यदि आपकी प्रार्थना जो है एक सिंसियर प्रार्थना है, tonight the Holy Spirit is going to touch your life. और सच में आज इस रात पवित्र आत्मा आपको छुएगी, Tonight the Holy Spirit is going to transform your life. और पवित्र आत्मा आज आपका जीवन बदल देगी। Tonight the Holy Spirit is going to give you new impartation और पवित्र आत्मा आपको जो है एक नया and challenge you and motivate you to go to greater heights in the days to come. और आपको पवित्र आत्मा चैलेंज करेगी कि आप बहुत ऊंचाइयों तक जाएं। Just pray that sincere prayer. और ये एकदम आप जो है सिंसियर प्रार्थना करें। I can pray with all my heart, और जो है मैं अपने पूरे दिल से प्रार्थना कर सकता हूँ। but my prayer is no match when everyone here prays with a sincere heart. लेकिन मेरी प्रार्थना कुछ भी काम की नहीं है इसमें। Close your eyes with me right now और अपनी आंखों को आप बंद करें and say, God, speak to me. और परमेश्वर से कहें तुम मुझसे बात कर, God will not disappoint you. और परमेश्वर आपको निराश नहीं करेगा। Hallelujah. हालेलुया। Loving Father, we come to you as we are. प्यारे परमेश्वर, प्यारे पिता, हम तेरे पास आते जैसे हम हैं। We don't come to you with our crowns, with our trophies, with our medals and with our achievements. परमेश्वर, हम अपने मुकुटों, अपनी ट्रॉफीज को लेके तेरे पास नहीं आते हैं। We come with whatever is left over in our hands, O God. जो भी प्रभु हमारे हाथ में है, हम और जो भी नहीं है प्रभु सबको तेरे पास लाते हैं। But we thank you because you are ready to bless us in spite of what we have. परमेश्वर, हम जानते हैं कि परमपिता परमेश्वर तू हमें आज आशीष देगा। This evening, इस शाम को we pray that you will speak to us. और हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु तू हमसे बात कर। We are ready to listen, O God. और प्यारे परमेश्वर, हम तुझे सुनने के लिए We are तैयार ready हैं to obey you. और हम तुझे मानने के लिए भी तैयार हैं। We want to be the person that you want us to be. और हम ऐसे व्यक्ति बनना चाहते हैं जैसे तू हमें बनाना चाहता है। Give us a sincere and obedient heart. और हमको प्यारे परमेश्वर एक सिंसियर और आज्ञाकारी मन दे प्यारे परमेश्वर। In Jesus' name we pray. और यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। Amen. आमीन। Amen. Everybody say amen. हर कोई कहे आमीन। Amen. आमीन। Jesus said wonderful parables. और यीशु मसीह ने बहुत अच्छे दृष्टांत कहे। One of those parables was about the lost sheep. और एक जो है उसमें दृष्टांत था खोई हुई भेड़ का। There was this shepherd who took all the sheep out to graze. और एक जो है उसमें हमने देखा एक गडरिया कुछ भेड़ों को लेके गया चराने के लिए। When evening approached, he brought all of them back. और जब शाम हुई तो वो सबको लेके आ रहा है वापिस। Just because he had many, he didn't assume that every sheep would have come back. तो जब उसके पास बहुत सारी भेड़ें थी तो उसने ये नहीं सोचा कि उसकी सारी sheep क्या वहां पर आ गई हैं। The shepherd began to count and realized there was one sheep that was missing. लेकिन जब उसने गिनना शुरू किया तो उसे पता चला कि उनमें से एक भेड़ वहां पर नहीं है। When he realized that one sheep was missing, लेकिन जब उसको ये पता चला कि एक भेड़ वहां पर नहीं है, he was deeply troubled. और उसके मन में एकदम जो है मतलब ट्रबल हो He गया। said, I cannot go to sleep before I find the sheep that I have lost. और उसके मन में ऐसा हुआ कि मैं सोने तब तक नहीं जा सकता जब तक कि मैं अपनी भेड़ को ढूंढ ना लूं। So he ensured that the rest of the sheep, that is 99 sheep, were secure. तो उसने ऐसा किया कि 99 भेड़ों को एक जगह किया And went after the lost sheep. और एक जो भेड़ खो गई थी उसके पीछे You गया। know, after a hard day's work, it is not so easy to go back to work. और आपको पता है कि एक पूरे दिन की जो है मेहनत करने के बाद फिर से एक भेड़ को ढूंढने जाना कितनी बड़ी बात है। You know, if I have left something back in the office and then if I come back home, I will always say, let me take it tomorrow. ऐसे ही होता है कि जो अगर हम जो अपने ऑफिस कार्यालय से आते हैं और हम कुछ भूल जाए कार्यालय में तो हम कहेंगे आज नहीं मैं वापस जा रहा, कल जाऊंगा ऑफिस। If I am rushing to the airport and when I get closer to the airport, I realize that I left something back home, I would say, okay, it's all right, let me take it next time.
और ऐसे होता है जब हम एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं तो एयरपोर्ट पे हम अगर कुछ चीज घर पे भूल जाते हैं हम कहते हैं चलो भूल गए तो कोई बात नहीं अगली बार ले लेंगे। But not this shepherd. लेकिन ये गडरिया ये चरवाहा ऐसा नहीं था। This shepherd said, I'm not going to take any chances. लेकिन ये कह रहा था कि मैं कोई भी जो है मतलब एक चांस नहीं लेना चाहता। I do not even know where my sheep is, but I want to find it. और मैं नहीं जानता कि मेरी भेड़ कहाँ होगी लेकिन मैं उसे ढूंढना चाहता हूँ। He went after the sheep and then he found it. और वो उस भेड़ के पीछे गया और उसको ढूंढ निकाला। You know, he only would have the instinct to look for the lost sheep in the right places. और सच में उसको पता था कि उसके अंदर अगर हम बात करें तो उसके अंदर सही में उसके अंदर वो गुण था ढूंढने का। Otherwise, in a mountainous area, where will you go and find a sheep? सच में उसके अंदर ये गुण था क्योंकि जो पहाड़ों में कहाँ खो गया भेड़ किसको पता, लेकिन उसे ढूंढा। And he found the sheep and he was very happy. और उसको जब वो मिल गया तो वो खुश हो गया। You know, because he was a good shepherd, he was happy. वो एक अच्छा चरवाहा था इसलिए वो खुश था। Otherwise, he should have got angry. हो सकता था वो गुस्सा हो जाता। You know, you wasted my time. तुमने मेरा समय खराब कर दिया। You caused anxiety for me. और मेरे लिए चिंता खड़ी कर दी। You know, my other works were all spoiled because of you. और तेरी वजह से जो है मेरे और भी काम छूट गए। You have been disobedient. और तुम तो अनेक आज्ञाकारी हो गए। You know, if he had not been a good shepherd, he would have taken a stick and he would have whacked the sheep. अगर वो अच्छा चरवाहा ना होता तो एक लेता डंडी धर के मारता। But according to the parable, लेकिन दृष्टांत के अनुसार the shepherd rejoiced. लेकिन वो जो अच्छा चरवाहा था उसने आनंद बनाया। And he didn't make the sheep walk. और उसने जो है उसको चलाया, भेड़ को चलाया। He carried it on his shoulder. उसको चलाया ही नहीं बल्कि अपने जो है कंधों पे रख लिया। He came home and he didn't silently close the matter. और वो अपने घर पे आया, उसने आके जो है एकदम इस काम को जो एकदम बंद नहीं कर दिया। You know, he told his neighbors, this sheep was lost, now I found, and he was very happy. और उस बात को एकदम गुप्त ही नहीं रखा बल्कि सबको बताया, अरे यार मेरी एक भेड़ खो गई थी और ये देखो मिल गई। This evening I want to ask you this question. मैं एक आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ। When Jesus found you, were you one of the 99 or were you like the one? अच्छा, जब यीशु मसीह ने आपको ढूंढ निकाला तो आप 99 भेड़ों में से थे या वो एक खोई हुई भेड़ थे? You know, when you look at the 99, it looks like the majority was there. तो मेरे को लगता है कि इधर बहुत सारे लोग होंगे जो 99 में एक जो बहुतायत में मतलब मेजॉरिटी वाले लोग होंगे यहाँ पर। At least this part of the parable doesn't seem to be true with reality. लेकिन हो सकता है ये जो है आपको लग रहा होगा कि ये सही बैठता नहीं है हमारे सच्चाई के साथ इस समय। Because most of the sheep are lost sheep. लेकिन सच्चाई तो ये है कि अधिकतर क्या होता है, खोई हुई भेड़ें मिलती है हमको। When you and I were lost, God undertook the mission to come after us and said, I'm not going to leave you. I want to get you back into my kingdom. क्योंकि अगर इस दृष्टांत के अनुसार देखें तो इसमें अगर हम पाते हैं कि जो खोई हुई भेड़ें हैं तो मोस्टली हमारे बीच में खोई हुई भेड़ें होती हैं जिनको परमेश्वर ढूंढने आता है। How many of you are happy that Jesus found you? अच्छा, आप में से ऐसे कितने लोग खुश हैं? How many of you are happy आपको यीशु मसीह ढूंढ निकाला? that you कितने didn't- लोग खुश हैं? you didn't यीशु have to मसीह ने go- आपको खोज निकाला। You didn't have to go on a pilgrimage to find him. तो आपको जो बड़ी बड़ी यात्राएं या धर्म यात्राएं करने की जरूरत नहीं होती ढूंढने के लिए। You didn't have to hurt yourself to find him. और अपने आप को कष्ट देने के लिए जरूरत नहीं है उसे ढूंढने के लिए। He came to the place where we were. वो ऐसी जगह है जहां पर आप थे। You know, for all the things that we did against him, he was not angry. और जो भी चीजें हमने उसके विरोध में की उससे वो गुस्सा नहीं हुआ। He said, you are my child, and he just embraced us and he और- took us. और उसने कहा तुम तो मेरे बच्चे हो और हमको गले लगा लिया। You know, when you read further in Luke 15, you read the parable of the lost son. और वहाँ अगर आप जो है लूका रचित सुसमाचार के 15वें अध्याय में देखें तो आप वहाँ पर पढ़ते हैं कि जो है वहाँ पर एक जो है गुमराह जो है पुत्र की कहानी आप जाते हैं, उड़ाऊ पुत्र जिसको हम बोलते हैं। A son who brought disgrace to his father. ऐसा वो उड़ाऊ पुत्र जो अपने बाप के लिए जो निंदा का कारण बन गया। A son who did not want to have anything to do with the father. और एक ऐसा सन जो अपने पिता से कुछ करना ही नहीं चाहता था। A son who took all his property, all his share, and then he walked out of the house. और ऐसा पुत्र जिसने अपने पिता की सारी संपत्ति ले ली और वहां से निकल गया। The Bible says he squandered his wealth in lavish and wild living. और उसने जो है अपने पिता का धन, बाइबल बताती है कि उसने अपने पिता का धन जो है पूरा जो है ऐशो आराम में गुजार दिया। He wasted all his money. सब का सारा पैसा एकदम बेकार कर दिया। And then he brought disgrace upon himself. और अपने ऊपर भी उसने क्या कर दिया, निंदा लेके आ गया। You know, in the Jewish culture, pigs are detested like anything. अगर यहूदी जो है अगर कल्चर की अगर हम बात करते हैं
तो वहां पर हम देखेंगे, and it was a shame that he was taking care of pigs. और अगर हम देखें यहूदी कल्चर में कि तो सुअरों को जो है कोई भी नहीं देखभाल करता, लेकिन वो सुअरों की देखभाल कर रहा था। And then he wanted to eat what the pigs would eat. और वो यहाँ तक गिर गया था नीचे कि जो सुअर खा रहे थे वही वो खाना चाहता था, And even that he couldn't get. और उस सुअर के खाने को भी वो नहीं पाया। But that is where he realized how his father would be. और इसी समय उसने वो महसूस किया कि उसका पिता जो है मतलब क्या सोच रहा होगा। And in this case, he took the initiative to come back to the father. और उस स्थिति में जो है उसने वो निर्णय लिया कि मैं अपने पिता के पास चलता हूँ। But again, I want you to understand how the father responded. और मैं फिर से आपको बताना चाहता हूँ कि वहां पर जाकर The Bible says the father spotted him at a distance. कि पिता की प्रतिक्रिया क्या रही होगी उस समय। तो और बाइबल बताती है कि जब पिता ने एक दूरी से उसको देखा, You know, and immediately he ran towards him and he embraced him. और पिता एकदम दौड़ा और उसको गले लगाने लगा। Now, you might say, oh, he was so loving, that's why he ran, he embraced, and that's why it happened like that. और आप कह सकते हैं हो सकता है भी पिता बहुत प्यार करता था तो इस वजह से वो जो है उसके पास भागा, दौड़ा और उसे गले लगा लिया। That is true. हाँ, वो सच्ची बात है, But there is more to it. लेकिन इसमें और भी अधिक बात मैं आपको बताता You हूँ। know, someone who did a background studies on Jewish cultures had this to say. और जिसने जो है पीछे की जो है मतलब पढ़ाई की है, इसमें इतिहास को देखा है यहूदी को, तो वो कुछ इस तरीके से बताते हैं। You know, in a Jewish culture, when a son or a daughter becomes prodigal, जब यहूदी जो है अगर हम देखें तो जब कोई उड़ाऊ पुत्र बन जाता है and comes back to the town, और जब वो वापिस आते हैं उस कल्चर के अनुसार वापिस आते हैं यहूदी कल्चर के अनुसार, anybody in the community spotting him or her would express disapproval. और वहां पर क्या करेंगे, उसको एकदम जो है ऐसे कर देते हैं जैसे गांव निकाला कर देते हैं एक तरीके से। उस तरीके से हर कोई कहता है अरे ये तो बेकार जिंदा है। And what they will do is they will bring all the water jars outside and then break it on the road. और वो क्या करेंगे, उसको जो डिसअप्रूवल दिखाने के लिए उसको जो है एकदम कि भाई तूने ऐसा किया है, तो अपने घर से एक पानी का जग लेके आते हैं मिट्टी का, उसको उसके सामने फोड़ के देते हैं। So if in a street such spots are all broken, अगर इस तरीके से अगर किसी सड़क पर ऐसी चीजें गिरी हुई या टूटी फूटी मिलती हैं, you know, it means the people in the street have expressed their rejection of this person. लेकिन इसका मतलब ये होता है कि अगर सड़क पे ऐसी चीजें मिलेंगे, इस व्यक्ति के लिए ये जगह बंद है। And this father looks at the son at a distance. लेकिन यहाँ पर हम पाते हैं कि ये पिता जो अपने बेटे को इतनी दूरी से देख रहा है, And then he said, before anybody could express rejection and disapproval, कि इससे पहले कि कोई आए और जो है मना कर दे इसको इधर आने से, I want to give my son my approval. और मैं जो है अपना जो है अप्रूवल देना चाहता हूँ उससे पहले कि कोई और आके मना कर दे। The father had no time to think about all the hurts that he has caused. तो जितना भी उसने जो है दर्द दिया था, That's why the Bible says he ran towards his son. और बाइबल बताती कि वो जो है अपने पुत्र के लिए दौड़ा। Now when the father embraces his son, nobody else can say anything about him. और जब पिता ने उसको गले लगा लिया तो कोई भी कुछ नहीं कह पाया। Others might reject them in their hearts, but they cannot express it. Even if they express it, that has no validity. और जो दूसरे लोग कह सकते हैं, लेकिन उससे पहले ही जो है उसने पिता ने उसको गले लगा लिया, इसलिए कोई उसकी जो है वैधता नहीं रह जाती, कोई कुछ भी कहे। Similarly, when we came to the Lord, probably because of a decision that we made to come to Him, you know, when we made a decision to come to Him, और जब हमने निर्णय लिया उसके पास आने का, there were others around us who said, you know, you think you are going to God? और कुछ लोग हमारे पड़ोसी हमसे कहते थे, अरे तुम परमेश्वर के पास जा रहे हो, So you got saved? और तुम्हारा उद्धार हो गया? You know, after all, doing all this, then you just take Jesus' name? और इतना गंदा काम करने के बाद अब तुम यीशु मसीह का नाम लोगे? And they will say, no, you are just acting, you will never change. और कुछ लोग आपसे कहेंगे, अरे तू तो केवल एक्टिंग कर रहा है और जो तू बदलने वाला नहीं है। How many of you come from a community that has rejected you? और आप में से ऐसे लोग कितने ऐसे समुदाय से आते हैं जिसमें आपका तिरस्कार कर दिया गया है? Can I see your hands? कोई अपने हाथ उठाएंगे, कोई Your अपने हाथ family उठाएंगे rejected you, your friends rejected you, your relatives rejected you. कि आपके दोस्तों ने आपका तिरस्कार किया हो, आपके रिश्तेदारों ने आपका तिरस्कार किया हो, वो लोग अपना हाथ उठाएं। But Jesus said it doesn't matter. लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं इससे कोई I फर्क नहीं approve पड़ता मेरे you. भाई।
I approve you. और मैं तेरे को सत्यापित करता हूँ। Jesus said, when I'm going to put my hand around you, nobody can say anything. और जब मैं अपने हाथ को तेरे ऊपर रख लूंगा तो कोई कुछ नहीं कह पाएगा। Whatever they say, it will not matter. और जो भी वो कहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। You're my child. तू मेरा बेटा है। And the Lord embraced us and got us into His kingdom. और उसको जो है परमेश्वर गले लगा लेता है और अपने राज्य में लेके आ जाता है। And that is why we are children of God right now. और इसीलिए हम परमेश्वर की संतान हैं इस समय। So whether it was the shepherd or whether it was the father, और ये बेशक चाहे कि एक चरवाहा हो या एक पिता की बात करें, you know, God as shepherd and God as father loves us the same way. और परमेश्वर एक चरवाहे के रूप में और परमेश्वर एक पिता के रूप में हमें प्यार करता है। And you are God's choice. और आप जो है परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। He has come after you. और वो आपके पीछे आया है। He has accepted you as His own. और परमेश्वर ने आपको जो है उस अपना स्वीकार कर लिया है। And He has no regrets. और उसको जो है कोई भी इसमें जो है पछतावा नहीं है। He is not interested in going back to where you started from. और वो इस बात के पीछे नहीं है कि जो है आपने कहां से चलना शुरू किया था। He is not interested in how many people you hurt. और वो इसमें भी जो है मतलब इंटरेस्टेड नहीं है कि आपने कितने लोगों को जो है मतलब दर्द दिया है, दुख दिया है। He said, all that is gone. वो कहता है कि वो सब तो बीत गया। I've called you for a new life. मैंने तो तुझे एक नए जीवन के लिए बुलाया है। Everything is going to be new. हर एक चीज नई हो जाएगी। The old is gone. पुराना तो जा चुका है। All things have become new. हर एक चीज नई हो गई है। You know, with this thing in mind, I want to take our attention to a passage of scripture quickly. और मैं इस समय जो है आपको एक जो परमेश्वर के वचन की ओर ले जाना चाहता हूँ। So we don't have time to read all those verses, but we will just take it up. Ephesians chapter 2. हम निकालेंगे इफिसियों की पत्री अध्याय 2। So let's look at verse 1 there. वहां पर हम पहला वचन देखेंगे। You know, it says we were once dead in our transgressions. और वहां पर लिखा है कि हम तो अपने पापों के कारण मरे हुए थे। We all followed the ways of the world. और हम सब ने संसार के ही रास्ते को चुना है। You know, if there is someone here who says, I never followed the ways of the world, I had no transgression in my life, I think you are sitting in the wrong place. अगर यहाँ पर आप कहते हैं कि जो है मैंने कभी जो है कोई गलत काम नहीं किया और ये मैं संसार की रीति पे नहीं चलता, तो मुझे लगता है कि आप गलत जगह पर बैठे इस समय। Because you should be sitting with the angels now. और आप तो फिर तो एक स्वर्गदूतों के साथ बैठना चाहिए फिर तो आपको। But all of us had transgressions. क्योंकि हम सब ने कहीं ना कहीं जो है हमारे जीवन में पाप रहा है। All of us went after the ways of the world. और हम जब संसार की रीति पे भी हम चले हैं। But the Bible says, you know, when you come back to verses 9 and 10 in the same chapter, out of His grace He saved us. और लेकिन अगर हम इसी में 9वां और 10वां वचन देखें तो वहां पे लिखा है कि हम परमेश्वर के अनुग्रह से बचाए गए हैं। And then when it comes to verse 10, it says we are God's workmanship. You know, we are the work of His hands. और वहां पर अगर हम देखते हैं तो वहां पर अगर 10वें वचन में देखें तो वहां ऐसा लिखा है कि परमेश्वर की हम श्रेष्ठ कृति हैं। Now that God has accepted you, जबकि परमेश्वर ने आपको स्वीकार कर लिया इस समय, you need to have a clear vision about how God sees you. तो आपका एकदम क्लियर जो है विजन होना चाहिए कि परमेश्वर आखिर आपको कैसे देखता है। You know, your past and all your sinful life will give a definition for your life. और जो आपका पीछे का जो है मतलब जितना भी जीवन था वो आपका एक बकाया है। But beyond that, the Bible says you are God's workmanship, the work of His own hands. और लेकिन बाइबल बताती है कि आप परमेश्वर के हाथों की श्रेष्ठ कृति हैं, उसके हाथ की श्रेष्ठ कृति हैं। That means you are not part of something like an industrial process where everybody is made alike. लेकिन आप जो ऐसे नहीं है कि जहाँ एक इंडस्ट्री की तरह नहीं है, संसाधन की तरह नहीं है, जहाँ पर एक बार कमांड दी जाती है तो वैसी चीजें बनने लग जाती हैं। Now there are some things manufactured in factories and when they are neatly packed, but until that time no human hand touches those products. और कुछ ऐसी भी चीजें बनाई जाती हैं, कुछ वस्तु ऐसी बनाई जाती हैं वो जब तक वो पैक नहीं हो जाती पूरी, कोई भी एक हाथ नहीं लगता मनुष्य का, सारी चीज बन जाती है। Whatever human hand touches, the fingerprint will be there. और अगर उसमें अगर मनुष्य का हाथ लग जाए तो उसकी फिंगरप्रिंट्स आ जाते हैं उसपे। In your life, लेकिन आपके जीवन में the fingerprints of God are there. परमेश्वर के फिंगरप्रिंट्स हैं। You know, you came through God's quality control check
God realized who you were, and then God sent you into this world. और आप परमेश्वर के कंट्रोल चेक से आए हैं, मतलब एक एक चीज को देख के परमेश्वर ने आपको बनाया है। So how do you see yourself now? और अब आप अपने आप को कैसे देखते हैं इस समय? You know, you might say, well, I accepted the Lord. Yes, I've experienced salvation. Now I'm a child of God. आप कह सकते हैं कि हाँ, मैंने परमेश्वर का उद्धार पाया, मैंने उसका अनुभव किया और मैं परमेश्वर की संतान हूँ। But look at my life. Nothing has changed. लेकिन मेरे जीवन को देखो, मेरा तो कुछ नहीं बदला। I'm still going to the same school. मैं अभी भी उसी विद्यालय में जा रहा हूँ। You know, I'm still working in the same office. और मैं उसी कार्यालय में काम कर रहा हूँ। I'm still living in the same village. और मैं उसी गांव में अभी भी रह रहा हूँ। I'm still taking home the same salary. और मैं अभी भी, मेरी वो तनख्वाह तो वही है। You know, I'm not getting new friends. It's all the same. और मेरे कोई नए दोस्त भी नहीं, मेरे तो वही पुराने दोस्त हैं। I'm living in the same house. और मैं उसी पुराने घर में रह रहा हूँ। Nothing has changed. और कुछ नहीं बदला। You know, if that is how you're looking at yourself this evening, I'm challenging you to look at yourself in a different way. और मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ कि आप अपने आप को इस तरीके से ना देखें, बल्कि अपने आप को एक नए तरीके से देखें। So we are going to quickly look at how God strategically placed us in the society. और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने आखिर किस रीति से हमको इस समाज में, संसार में किस तरीके से रखा है। So to begin with, I'm going to ask for those of you और मैं शुरू करना चाहता हूँ सबसे पहले उन लोगों से who were toppers in your class, either in school or in college, you always got the first rank. मैं उन लोगों से सबसे पहले बात करना चाहता हूँ जो अपने कक्षा के अंदर सबसे टॉपर्स रहे हैं, या तो विद्यालय में या कॉलेज में, कैसे भी जो टॉपर्स आए हैं। कोई है टॉपर्स? Okay, I see few hands. मेरे को कुछ हाथ दिख रहे हैं इसी बात पे। You know, you are class toppers. आप कक्षा में टॉपर आए थे? Okay, can you just stand right where you are? और आप जहाँ कहीं वहीं खड़े हो जाएंगे। जो लोग टॉपर आए तो अच्छा लगेगा हमें देख के। No problem, no problem. आप प्लीज खड़े हो जाइए। Okay, I saw hand here. और एक भाई इधर भी है हमारे। Okay. और I think we will give auntie a break. You can sit down. The others, you know, can you just come forward, please, for 1 minute? और बाकी जो लोग हैं पीछे और इधर वाले आगे आ जाइए, प्लीज आप लोग आगे आ जाइए। Come here. प्लीज जल्दी आइए। Come here. जल्दी आइए। Don't worry, I'm not going to ask you to do anything. और आप इसकी चिंता ना करें कि मैं आपसे कुछ पूछने वाला हूँ। I just want you to be here. मैं बस ये चाहता हूँ कि आप इधर आएं। To begin with, let's just give them a big hand. सबसे पहले एक तालियों से इनका एक बार अभिनंदन कर दिया जाए। It is clear that this group is a minority. और इधर यहाँ से एक बात क्लियर हो गई, इधर तो माइनॉरिटी ग्रुप है भाई। The majority never got here. यहाँ पर क्या है, जब बहुतायत के लोग हैं वो नहीं आते, केवल थोड़े लोग आते हैं। In school, always our teachers said, if you need to be a good student, you must be like them. और हमेशा जो है कक्षा में कहते हैं, अगर अच्छे विद्यार्थी बनना चाहते हो तो इनकी तरह बनो, इनकी तरह देखो इनको। And your parents said, you know, look at you, look at them. और हमारे माता पिता कहते हैं, अरे तू अपनी ओर देख और इनको देख। They are always getting first rank. Have you got first rank at least once? और ये हमेशा इनको तो प्रथम अंक मिलता है, तेरे को कभी मिला है? And then most of the time we got jealous of them. और कई बार हमको इनसे जलन होने लग जाती है। Okay, there were some who had muscle power, always sit next to them and say, hey, show everything. और कई बार जिनके अंदर जो मतलब हाथों में ताकत रहती है, उनके जो है मतलब बलशाली है, तो वो कहते हैं, ओए मेरे को दिखा क्या किया तूने। How many times they face problems like that? और बहुत सारे लोग इस तरह की समस्या से गुजरते हैं। But there is no need to feel jealous. और लेकिन इसमें हमें कोई जलन रखने वाली बात नहीं है। When I look at them, I like to call them the Daniel generation. और जब मैं इनको देखता हूँ तो मैं कहता हूँ कि ये दानियल वाली प्रजा है ये। King Nebuchadnezzar attacked Judah. और यहूदा को जो है नबूकदनेस्सर राजा ने अटैक किया। And then he took whatever he felt like that would be useful. और जो भी उसको अच्छा लगा वो उसको वो ले गया अपने साथ। And then he took some from the royal family. और जो है कुछ जो है बेटों को ले गया, जो राज के परिवार थे उनमें से ले गया बेटों को। And then he looked at Daniel and his friends. और वहां पर उसने दानियल और उसके दोस्तों को देखा। And he said, these are fine young men. और उनको देख के कहा, अरे ये तो बहुत ही अच्छे जो है जवान Men of wisdom, men of integrity. और वहां पर उनको देखा, ये तो ईमानदारी से भरे हुए और बुद्धि से भरे हुए व्यक्ति। And then the king was pleased to appoint them in service to himself. और वहां पर उसने जो है उनको राजा ने अपनी ही सेवा के लिए रख लिया।
And they were into the administrative service. और वो जब प्रशासनिक कार्य में आ गए, We got our dear Anand here. और हमारे यहाँ पर प्रिय भाई हैं, No country will turn over the administration to experts from another country. और ये बात सच है कि कोई भी जो है प्रशासनिक कार्य में किसी विदेशी को नहीं बुलाते अपने देश में, There will always be suspicion. और उधर हमेशा उनको शक रहेगा अगर विदेशी किसी को बुला लेंगे तो। But Nebuchadnezzar looked at Daniel and his friend and he said, "No, I can trust them." और नबूकदनेस्सर ने उनको देखा और उन्होंने कहा मैं इन पे विश्वास कर And सकता I हूँ। want you to know that there are people in Daniel's generation whom God selects and says, "These are my people." और ऐसे ही जो है दानियल की जो है अगर हम कहें कि पीढ़ी में कि ऐसे लोग होते हैं जिनमें हम विश्वास रख सकते हैं। They are the achievers. वो क्या करते हैं, चीजों को जो है पा लेते हैं बड़ी आसानी से। You know, God has called them to achieve. और परमेश्वर ने बुलाया कि वो किसी भी चीज को पा God लें, has given them the ability. और उनके अंदर वो क्षमता दी गई है। And there is something that God wants to do with them. और परमेश्वर चाहता है कि ये कुछ इनके द्वारा किया जाए। You know, they are God's workmanship. और आपको पता है परमेश्वर की जो है महान So सृष्टि है, God's wisdom is obvious in their lives. और परमेश्वर की बुद्धि इनके जीवन में है। Now, if you are not one of them, there is nothing to feel sorry about. और अगर आप इनके जैसे नहीं है तो आपको अपने ऊपर एक क्षमा जैसी वाली भावना नहीं आनी चाहिए। Because in whatever way God has placed them and called them, God is going to do something with their lives. और परमेश्वर इनको जहाँ कहीं भी रखा है, परमेश्वर इनके लिए कुछ करना चाहता है। You know, God has called you to places that you would never dreamt about. और आपको परमेश्वर ऐसी जगहों पे लेना चाहता है जिसके बारे में आपने कभी सपना भी नहीं देखा होगा। When God takes you, national boundaries won't matter. और परमेश्वर जब जो है राष्ट्रों की बाउंड्रियों के पास भी ले जाए तो उसका भी कोई फर्क नहीं पड़ता। You know, the way you are going to be used is not limited to the particular field that you specialized in. और हो सकता है कि परमेश्वर आपको ऐसी जगह इस्तेमाल करें जिस कार्य में आपकी जो है क्षमता भी नहीं उससे भी आगे ले जाएंगे। You are God's masterpiece. आप परमेश्वर की जो है महान कृति हैं, And God has called you to be so. और परमेश्वर ने आपको इसीलिए बुलाया है। Let's just give them a big hand and as you आइए इनके लिए फिर से तालियां बजाएं। let me come to the second group. आइए मैं दूसरे जो है ग्रुप के पास चलता हूँ। You know, the guys who always sit in the last row. और ऐसे लोग Who sit in the last row. और ऐसे अब मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो हमेशा जो है सबसे पीछे वाली जो है लाइन में बैठते हैं, पंक्ति में बैठते हैं, सबसे पीछे वाली पंक्ति में हमेशा बैठते हैं। The guys who were sent out of class so many times. और ऐसे वो व्यक्ति है जो कक्षा से हमेशा बाहर निकाल दिए जाते हैं। The guys who always had problems with his report card. और उनकी जो है मतलब रिपोर्ट कार्ड में जो हमेशा समस्या ही दिखती है। You know, the guys whose report cards were always colorful with red color and all colors there. और उनकी रिपोर्ट कार्ड में हमेशा आपको लाल पेन ही दिखेगा। You know, if I'm going to call you, maybe you say, no, I don't. अगर मैं आपको बुलाऊंगा तो आप नहीं मैं नहीं। But let me ask you, how many of you dare to say, yes, I was like that, but I am not ashamed? लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप में से ऐसे कितने लोग जो ये कह सके कि जो है मैं वैसा था लेकिन मैं उसके लिए अब अपने आप को जो है शर्मिंदा महसूस नहीं करता। Can I see your hands? कोई अपने हाथ ऐसे उठा सकता है कि मैं ऐसा था लेकिन अब मैं शर्मिंदा महसूस नहीं You कर don't need सकता। to feel ashamed. आपको जो है शर्मिंदा होने के लिए या महसूस Okay. करने की जरूरत नहीं है। Right. I want only 5 of you to just come forward. केवल मैं आप में से 5 लोगों को यहाँ बुलाना चाहूंगा। Come on. प्लीज आइए देखते कितने लोग आते हैं। Now sitting there, you don't say, oh, you also like this. No. आप वहाँ पर देख के ये नहीं बोले अरे तू भी Okay. ऐसा था। See the majority here. देखिए यहाँ पर मेजोरिटी आ रही है। हमने 5 बुलाए थे, कितने आ गए? Okay. Just be here. देखो ये यही भी आप इधर ही आ जाइए, खड़े हो जाइए। Okay. आइए। Now these are the amateurs. और ये क्या है? आप परिपक्व लोग हैं। They were never specialists in mathematics. और ये मैथ में कभी इंग्लिश भी नहीं आई ढंग से, Science no coming. और साइंस भी तो कभी आया ही नहीं कुछ इनका, Nothing coming. और कुछ भी नहीं आता था इनको तो। So the teachers always had problems with this. और जो शिक्षक को हमेशा इनके साथ जो प्रॉब्लम रहती, समस्या रहती थी। And every year the teachers prayed, Lord, don't send these people to my class. और हमेशा जब टीचर भी प्रार्थना करता था कि इन बंदों को मेरी क्लास में मत भेज, Let them go somewhere. और ये तो किसी और की कक्षा में चले जाएं। All the teachers came to them and said, how many schools are there in the city? Why do you want to come to this school? अरे तुम इस विद्यालय में क्यों आ जाते हो और किसी विद्यालय में पढ़ने चले जाओ भाई।
Now, who do you think made them? और आप क्या सोचते हैं इनको किसने बनाया होगा? Devil made them? शैतान ने बनाया क्या इनको? Who do you think made them? और किसने बनाया इनको? And why are you not saying it? Who made them? आप क्यों नहीं कह रहे कि इनको किसने बनाया है? Who made them? किसने बनाया इनको? God made you. और परमेश्वर ने आपको बनाया है। God made you. परमेश्वर ने आपको बनाया है। You are God's workmanship. और आप भी परमेश्वर की श्रेष्ठ कृति हैं। Now why are you waiting? Give them a big hand too. तो आप क्या इंतजार करें? तालियों से इनका अभिनंदन करें। And you might be wondering, who are these fellows that I'm going to compare to? और आप सोच रहे हैं कि यार इनका आखिर जो है किससे तुलना की जाएगी अब? This is the David generation. और ये पता है कौन सी? दाऊद की जनरेशन वाले, दाऊद की पीढ़ी वाले लोग हैं ये। You know, not recognized in the family. और इनको जब परिवार में कोई सम्मान नहीं दिया जाता। You know, the brothers were all skillful, talented. They enrolled in the army. They were all there. और भाइयों के अंदर जो सारे जो गुण थे और उनको जो है सेना में भर्ती कर दिया गया। And they were the big guys in the family. और वो बड़े बंदे थे वो। And because they were serving in the army, they had money. और वो सेना में जो है मतलब कार्य करते थे तो उनके पास पैसा था। They had income. उनके पास जो है मतलब आय थी। But what do you think David was doing? आपको क्या लगता है दाऊद क्या करता था? Taking care of his own father's sheep. और वो तो अपने पिता की जो भेड़ों की रखवाली करता था। Do you think his father gave him salary? तो आपको लगता है क्या उसके पिता ने उसको क्या तनख्वाह देते होंगे? बताइए। The Bible says when the animals attacked the sheep, David fought against that, whether it's a lion or a bear, and attacked and killed it. और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो है जब भेड़ों पे जो हमला हुआ तो यहाँ तक कि दाऊद ने उस क्या किया जाए शेर को भी फाड़ दिया, यहाँ तक कि भालू को भी फाड़ गिराया। David was a strong man. और दाऊद क्या है? एक ताकतवर इंसान था। He could stand against a lion. You can imagine the kind of muscles that he would have had. और आप सोच सकते हैं कि जो है उसके हाथों में कितनी ताकत होगी कि जो एक शेर से भी भिड़ गया जाके। Now do you think with all those muscles he wouldn't have qualified to join the army? तो आप सोच सकते हैं कि भाई इतनी जब ताकत है तो क्या वो आर्मी में भर्ती ना हो जाता, सेना में भर्ती ना हो जाता? Probably they thought he was too short. लेकिन उन्होंने सोचा रही है इसकी तो ये तो नाटा बंदा है। Because when they tried Saul's armor on him, he couldn't even walk. और जब उसके ऊपर जो है मतलब सारी चीजें जब हम देखते हैं कि सारे कवच उसके ऊपर डाल देते तो वो चल भी नहीं पाया था। So they all decided he is good only for taking care of the sheep. और सब लोगों ने मान लिया कह रहे केवल ये तो भेड़ चराने के लिए काम का है बस। When his brothers were in influential positions, जो और उसके भाई जो है क्या थे एक जो है अच्छी मतलब इन्फ्लुएंशियल पावर में थे, वो शक्ति में थे। David was always with the sheep. और हमेशा जो है वो भेड़ों के साथ ही रहता था दाऊद तो। No salary, no income. दाऊद की ना तो कोई तनख्वाह थी ना कोई आय थी। No people to recognize. और कोई उसको जो है कोई देखने वाला भी नहीं था। Nobody to appreciate. और कोई उसको जो है मतलब अच्छा बोलने वाला भी नहीं था। But he was a good shepherd. लेकिन वो एक अच्छा चरवाहा था। Whatever he had to do, he was happy about doing that. लेकिन जो भी वो करता था उसमें वो खुश था। He never applied for any jobs. और उसने किसी जो नौकरी के लिए यहाँ कहीं Probably आवेदन नहीं किया। nobody ever gave him anything like that. और उसको जो है किसी ने उसको ऐसे ही कुछ भी नहीं दे दिया। You are the David generation. और आप जो है दाऊद की पीढ़ी हैं। And many of your friends are all seated there. और आपके बहुत सारे दोस्त भी उधर बैठे हैं। Don't worry about it. और लेकिन इसकी कोई चिंता ना करें। You may not be at the top, और आप जो है ऊंचाइयों पर नहीं हो सकते। but you are God's workmanship. लेकिन आप परमेश्वर की सृष्टि हैं। You know, if you go to the shop, they have factory seconds. और आपको पता है हम देखते हैं कि जो है सेकंड हैंड जो माल होता है उसकी जो फैक्ट्री होती है। In the manufacturing process, if some defect takes place, they say it is seconds. और जब वो बोलते हैं कि सेकंड हो गया भाई, सेकंड हैंड माल हो गया, इसमें भी कुछ डिफेक्ट हो जाता है तो सेकंड हैंड माल की वो लगा देते हैं दुकान। You are not seconds. लेकिन आप जो है सेकंड माल नहीं है। You are not seconds. आप सेकंड माल नहीं You है। are chosen. आप तो चुने हुए हैं। You are God's workmanship. आप परमेश्वर की श्रेष्ठ कृति हैं। Nobody ever believed that David could become the king. किसी ने विश्वास नहीं किया था कि दाऊद एक राजा बन सकता है। He was just a good shepherd. वो तो केवल एक अच्छा चरवाहा था। But God said, I have something planned for you. क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि मेरे पास तेरे लिए एक योजना है। But until I come to you, I want you to be faithful in the work that you are doing. लेकिन मुझसे उससे पहले तुझे इधर आए, उससे पहले मैं चाहता हूँ जो काम तू करता है उसमें विश्वास योग्य हो। He did not go seeking a job. वो इधर से कहीं आवेदन करने के लिए नहीं गया।
But the Lord spoke to Samuel, you go to him and you anoint him. लेकिन परमेश्वर शमूएल से बात की कि तू जा और उसको जाके अभिषेक कर। And then when Samuel comes there, Jesse lines up all his sons, but he doesn't even think about David. और जब यिशै के घर में जो है शमूएल आ गया तो उसने देखा कि सभी को उसने अपने अच्छे बेटों को वहां पर खड़ा कर दिया और लेकिन दाऊद को नहीं पाया वहां। I do not know about you, और जब परमेश्वर भी जो है, but in many families, लेकिन ऐसे परिवारों में if you don't study, अगर आप पढ़ेंगे नहीं, if you don't achieve, अगर आप कुछ चीजें प्राप्त नहीं करेंगे, if you don't earn, अगर आप कमाएंगे नहीं, you have no value. तो आपके परिवार में आपकी कोई जो है मान्यता नहीं है। And especially if you're born with siblings who are achievers, लेकिन और अगर आपके यहीं ऐसे भाई बहन हैं जो मतलब हर चीज को प्राप्त करने में लगे रहते हैं, you have no value. तो तुम्हारी भी तो वैल्यू घट जाती है भाई। But God doesn't look at it. लेकिन परमेश्वर इस तरीके से नहीं देखता। That's why he had to tell Samuel, और इसीलिए जब शमूएल को कहना पड़ा परमेश्वर को, man looks at the face, कि जब परमेश्वर के आदमी जो है चेहरे को देखता है, God looks at the heart. और परमेश्वर दिल को देखता है। The world looks for certificates. और दुनिया जो है सर्टिफिकेट को देखती है The आपके, world looks for medals. और जो है मेडलों को देखती है, The world looks for trophies. और आपकी जो ट्रॉफीज आपने जीती है उनको देखती है। You may not have any, और हो सकता है आपके पास एक भी ना हो उनमें से, but God looks at your heart. लेकिन परमेश्वर जो है आपके दिल को देखता है। Keep it clean. Keep it clean. इसको साफ रखें, Keep it polished. इसको हमेशा चमका के रखें, Keep it filled with the presence of God. और परमेश्वर की जो है वास जो है इसके अंदर हमेशा रखें। That opportunity that you're looking for will come to your doorstep. और अगर आप ऐसा रखते हैं तो वो आपके जो है दरवाजे दिल पे ही खटखटाएगा। Because you're not seconds, you are God's workmanship. आप जो द्वितीय व्यक्ति नहीं है, आप तो जो परमेश्वर की महान सृष्टि हैं। Don't ever lose heart because you're not able to achieve like others do. अपने दिल को एकदम हारा हुआ ना समझे कि और लोगों को मिल जाता, मुझे नहीं मिलता। You are the David's generation and God knows what to do with your life. आप तो दाऊद की पीढ़ी हैं जो परमेश्वर आपको बनाना चाहता है। Give them a big hand as well. इनको भी तालियों से अभिनंदन किया जाए। God loves you. परमेश्वर आपसे प्यार करता You can go back to your seats. आप अपनी अपनी कुर्सियों पे जा सकते हैं। God knows what to do with every individual. परमेश्वर जानता है कि हर एक मनुष्य के साथ क्या किया जाए। He makes no mistakes. वो कोई गलती नहीं करता। You know, there are some children, you beat them with anything, they are not going to study at all. और कुछ ऐसे बच्चों ने आपको कितना भी मारो उन्हें पढ़ना ही नहीं है। And if at all, there are parents here who say, I'm so distressed because my child is not studying और properly. यहाँ पर कुछ ऐसे माता पिता जो कहेंगे मेरा बेटा तो पढ़ता ही नहीं, मेरे को बहुत चिंता हो गई है। Make sure that your child loves the Lord. और आप बस इस चीज की चिंता करें कि आपका जो बच्चा परमेश्वर को प्यार करे। God knows what to do with him. परमेश्वर जानता है कि उसके साथ क्या करना है। Let me quickly go to the next one. आइए हम एक और ग्रुप के पास चलते हैं। You know, Esther became the queen. एस्तर जो है रानी बन गई। She did not apply for it. क्या उसने उसके लिए जो है आवेदन किया था? She did not take any recommendation. उसने जो है किसी से जो है मतलब रिकमेंडेशन भी नहीं ली कि भाई मेरी पहुंच लगा दो। We don't know how it happened. और हमें नहीं पता कि वो कैसे हुआ। But the king was upset with the queen that he already had. और लेकिन जो है वो राजा जो है अपनी जितनी उसकी जो रानियां थी उनसे परेशान था। And then he decided that Esther would be the next queen. और उसने जो है निर्णय ले लिया कि भाई एस्तर ही जो एक नई रानी होगी मेरी। And because of the king, Esther was promoted to a position of influence. और उसी की वजह से जो क्या हुआ कि एस्तर को जो है एक बहुत ही बड़ी जो है एक इन्फ्लुएंशियल पोजीशन मिली। A position of power. जहाँ पर ऐसी जो है उसको पावर, जहाँ पर उसके पास शक्ति है। You know, a position of authority. और ऐसी जो है उसको स्थिति मिली जहाँ पर उसके पास जो सामर्थ्य भी है। You know, did she pass any exam? क्या उसने कोई एग्जाम पास किया था? Did she achieve anything? क्या उसने कुछ और इससे पहले कुछ प्राप्त किया था? You know, it did not depend on what she did. It all came because of her husband who was a king. उसके पास जो भी कुछ मिला उसको उसके पति के द्वारा मिला, क्योंकि उसका पति एक राजा था। So there are some of you here. लेकिन आप में से कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं whose parents or siblings or you know, someone in the family are in positions of influence and authority. और आप में से ऐसे होंगे जिनके माता पिता जो है ऐसी परिस्थिति में है जहाँ पर इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, वो मतलब बड़ी बड़ी पोजीशंस पे हैं, वो You know, पदों पे हैं। maybe a top businessman.
हो सकता है कि बहुत बड़े जो है बिजनेसमैन हो वो, or maybe someone in high positions in the government, और हो सकता है कि जो है बहुत अच्छा उनका पद हो सरकारी नौकरी के अंदर, or maybe even a politician, और हो सकता है कि बहुत बड़े राजनेता हो, where there is power to negotiate. और वहां पर क्या है उनके पास शक्ति है कि वो किसी से भी जो है मतलब निगोशिएट कर सके, वार्तालाप कर सके। I'm not sure how many of you are here there, और मुझे नहीं पता आप में से ऐसे कितने लोग होंगे, but you don't have to feel sorry about. और आपको जो इसके लिए जो है आप अपने आप को क्षमा या सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। You know, if I say I come from an influential family, you know, it will be like I'm boasting, you know, I'm feeling proud. No, you're not feeling proud. You're just telling the truth. और अगर आप जो है मतलब बोले कि भाई आपको गर्व मानने वाली बात नहीं है, अगर आप जो है बोलते हैं कि भाई मेरे जो है मम्मी पापा इतनी अच्छी पोजीशन पे, तो आपको बोलने की जरूरत नहीं है। How many of you here can say I come from families that are influential and powerful? अच्छा, आप में से ऐसे कितने ऐसे बोल सकते हैं कि भाई मैं ऐसे परिवार से आती हूँ जहाँ जो है मेरे माता पिता अच्छी पोजीशन पे हैं, पद पे हैं। You know, you don't have to be the prime minister's daughter, but you are somebody, okay? आपको जो है एक प्रधानमंत्री की बेटी होना यहाँ पर नहीं है, बल्कि आप में से कोई कह सकता है हाँ मेरे माता पिता भी कुछ हैं, ऐसा कोई हाथ उठा सकता है? Can I see your hands, please? Don't worry. और कोई ऐसे हैं जो अपने हाथ उठाए ऐसे में? Yes, I see one hand here. Any more hands? और एक हाथ इधर है, एक हाथ इधर है। I see two hands there. और दो हाथ में वहाँ देखता हूँ। Okay, why don't you come? Why don't you come? आप लोग भी आइए, प्लीज आइए, आप लोग भी आइए। Please. आइए। Come here just for 2 minutes. केवल 2 मिनट के लिए आप आइए। Anybody else from behind? और कोई आना चाहता है पीछे से? Okay. It would have been nice if some girls had come also, but it's all right. अगर कोई बहनें भी आती तो अच्छा रहता, अगर कोई बहन आ सकती है तो वो भी अच्छा रहेगा। They never asked for anything. इन्होंने कभी किसी चीज के लिए मांगा नहीं है कभी अपने जीवन में। Before they were born, they never went to God and said, God, I must be born only in a powerful, influential family, okay? और इन्होंने जो है कोई उससे पहले जब पैदा होने से पहले भी नहीं कहा होगा कि जो है परमेश्वर मैं तो जो है ऐसे परिवार में पैदा होना चाहता हूँ जहाँ पर बहुत रुपया पैसा हो। They never said, God, if you're not giving me rich parents, I don't want to be born. और ये ऐसा नहीं कहा होगा इन्होंने कि तू मुझे अमीर अगर माता पिता नहीं देता तो मैं पैदा नहीं होना चाहता। They never made any choice. They never made any effort. It just happened that they are part of families that had influence. ये इन्होंने जो है खुद कुछ भी नहीं किया, ये तो एकदम परमेश्वर की योजना के अनुसार जो है मतलब ये हो गया। As I look at them again, I want to tell you. अब जब मैं इनको देखता हूँ तो मैं फिर से आपको एक बात बताना There is nothing to feel jealous about. और इनको देख के भी जो है आप कोई जलन रखने वाली कोई बात नहीं है। It's really wrong to feel jealous because they never made the choice. क्योंकि इन्होंने कोई निर्णय इसके ऊपर नहीं लिया है। God put them there. और परमेश्वर ने उनको इस जगह रखा है। God put them there. तो परमेश्वर ने उनको उस जगह रखा। Because God has something to do. क्योंकि परमेश्वर के पास कुछ योजना है इनके लिए भी करने के लिए। God wants them to do something from their own position right now. जिस स्थिति के अंदर ये हैं, उस स्थिति में ये परमेश्वर के लिए कुछ कार्य करे, इसीलिए इनको वहां रखा गया है। We do not know how many years Queen Esther lived. और हमें नहीं पता कि जो कैसी कितनी रानियां रही होंगी क्वीन जैसी। But there was one decision that she had to make. लेकिन जो है उसको एक निर्णय लेना था। When the future of the Jewish community was a big question mark. उस समय जो एक बहुत बड़ा प्रश्न था यहूदी समाज पर। When the enemies of God's people were conspiring to wipe them out from the face of the earth. और यहूदियों को जो है पूरे जो है मतलब संसार से मिटाने की बात आ गई थी उस समय। God had one Esther in a position of influence and power. और उस समय जो है वहां पर हम देख पाते हैं कि जो है एस्तर रानी एक जो है ऊंचाई के पद पर थी। And that's what the Bible calls for such a time as this. और वहीं पर देखते हैं हम इसी समय को देखते हैं जहां पर बाइबल में पाते हैं हम इस समय को। Esther walks into the presence of the king. वहां पर जो है एस्तर रानी जो है वो जो राजा के जो है उसमें घुस जाती है। Opens out to him. और उसको जो सारी बात बताती है। Brings out her concerns. अपनी जो जितनी भी बातें हैं यहूदी समाज के लिए वो सारी बताती है। The king decides. और राजा वहां पर निर्णय लेता है। And the entire multitude of God's people were delivered instantly. और एक एकदम अचानक ही जितने भी जो परमेश्वर को मानने वाले लोग यहूदी लोग थे सबके सबको छुटकारा मिल जाता है। For that one moment God had to raise Esther to the highest position possible. और वहां पर जब परमेश्वर ने एस्तर रानी को इतनी ऊंचाई वाले पद पे
ले गया कि जिससे कि पूरा का पूरा यहूदी समाज बच जाए। So as you are in your own positions, जैसे कि आप अपनी अपनी स्थिति में हैं, you may not have something to achieve daily. तो हो सकता है कि आप जो हर दिन कुछ अच्छा ना करें। You know, you may not be able to say, these are all my achievements, and you can line up a long list. Maybe no. और ऐसा नहीं कि आप जो हर दिन अपने जो एक लंबी लिस्ट बनाए और उसमें कहेंगे ये मेरे जो है ये सारी चीजें मैंने प्राप्त की हैं। But just believe there is at least one moment coming in your way. और आप बस इस चीज के एक क्षण का इंतजार करें जिसमें परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। Where everything will depend on what you are going to do. और उस समय जो है सारी चीजें सिर्फ आपके ऊपर निर्भर रहेंगी। And at such a time, don't disappoint God. और उस समय जो है परमेश्वर को निराश ना करें आप। God doesn't worry about allowing you to enjoy all the good things of life. और परमेश्वर आपको जो है मतलब जो संसार की चीजों का आप आनंद ले रहे हैं आप उसका ले सकते हैं। God has no regrets about the luxury that comes your way. और जो भी आपके जीवन में ऐशो आराम आते हैं उससे परमेश्वर कोई चिंता नहीं। God doesn't worry about all the popularity that you enjoy. और जो भी प्रसिद्धि आप पाते हैं उससे भी परमेश्वर कोई चिंता नहीं है। But He always says there is one moment for which I have picked you up. लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैंने उस एक क्षण के लिए आपको चुना है। Don't let me down at such moments. और मेरे को उस समय आप तिरस्कार मत कर देना। So this is God's choice. This is God's workmanship. और यह भी परमेश्वर की जो है एक योजना है और ये परमेश्वर की महान सृष्टि है। They don't need to come out of it. और ये जो है इसके साथ आए नहीं थे। They don't need to feel guilty about who they are. और इसके लिए इनको जो निराश होने के लिए भी गिल्टी होने की भी जरूरत नहीं है कि मैं क्या हूँ। If they are blessed with riches, they don't have to feel sorry about it. अगर इनके पास बहुत पैसा है तो इसके लिए भी जो है इनको जो है अपने ऊपर सॉरी होने की कोई जरूरत They नहीं are है। God's workmanship. ये परमेश्वर की महान सृष्टि है। So whatever that moment is, कोई सा भी जो है वो क्षण आएगा, look forward to it. उसको देखें, उस क्षण को देखें। And you will be a blessing to a multitude. और आप जो है बहुत सारे लोगों के लिए एक जो आशीष होंगे। Just because of one or two things that you're going to do. आप सिर्फ 2 या 3 चीजें करने वाले हैं। Give them a big hand right now. इनके You लिए can go तालियां back. God बजाएं। bless you. आप God हमेशा bless आपको you. आशीष करें। So here is the influential group, the Esther generation. तो यहाँ पर ये एस्तर की पीढ़ी वाले लोग थे जो मतलब ऊंची I come to the last पदों group. पर पहुंचते हैं। I come to the last group, अब मैं एकदम अंतिम वाले ग्रुप पे जा रहा हूँ the impoverished group. और एक जो है मतलब इम्पोवरिश ग्रुप पे जा रहा हूँ जिसको मतलब कुछ बिल्कुल बेकार होते हैं, जैसे कुपोषण वाले अगर हम कहेंगे कुपोषण की तरह की स्थिति जो होती है उस तरीके वाले Who look at the society and say, I have nothing. जो कि देखते हैं समाज को देखते हैं और कहते हैं अरे मेरे पास तो कुछ I नहीं, don't have my own vehicle. मेरे पास तो गाड़ी भी नहीं है, I don't have my own house. मेरे पास तो घर भी नहीं है, And in my house, I don't have a refrigerator. और मेरे घर में तो फ्रिज भी नहीं है, I don't have an AC. मेरे पास तो एयर कंडीशनर भी नहीं है, I don't have anything to brag about. और मेरे पास तो कुछ भी नहीं है जिसकी मैं जो है मैं कोई बात भी कर सकूं। I come from a simple family. मैं तो एक साधारण से परिवार से आता हूँ, I come from a humble family. मैं तो एक विनम्र परिवार से आता हूँ, I went to a government school. मैं तो एक सरकारी विद्यालय में पढ़ा हूँ। I had no money to buy my uniform. मेरे पास तो पैसे नहीं थे कि मैं अपनी जो है I had no यूनिफॉर्म money खरीद पाऊं। to buy my books. मेरे पास तो किताबों खरीदने के भी पैसे नहीं And थे। even when I was in college, I used to borrow books and study. और जब मैं कॉलेज में था तब भी मैं जो है मैं अपने दोस्तों से किताबें लेके पढ़ लेता था। That is my testimony. वो मेरी गवाही है, How many of you are like that? और ये मेरी गवाही है। ऐसे कितने लोग हैं? Don't feel sorry. आपको जो है अपने ऊपर जो है मतलब एकदम सॉरी होने की कोई You are जरूरत not a नहीं है, mistake. और आप जो है कोई गलती नहीं है। Yeah, see, I see at least two hands here. Anybody who comes केवल 2 from, ही हाथ ऐसे उठा रहे हैं, 3 हाथ उठा रहे हैं, ऐसे कोई और भी है? you know, real trouble. Yes, I see one hand there. One और hand there. एक 2 हाथ मुझे उधर भी दिख रहे हैं। Now, why don't you come? Why don't you come आप quickly? क्यों नहीं आ जाते? आप भी आइए, आइए, Come quickly. जल्दी जल्दी आइए, Yes, brothers, come. आइए भाई आइए। The society looks at them and says, you can go to that side. और समाज इनकी ओर देखता और कहता है, And then says, this is the voiceless generation. और इनको कहता है कि इनकी तो कोई आवाज ही नहीं है, They cannot fight with anybody. ये तो किसी से लड़ ही नहीं सकते। If the powerful leaders say anything, then they have to listen. अगर कोई जो है नेता आके कुछ कहता है इनसे तो इनको बस सुनना ही है, They cannot go and stand before anybody and say, you are wrong. और ये वहां पर जाके खड़े होकर ये नहीं कह सकते कि भाई तू गलत है। Even if they suffer injustice, they have to bear with it. अगर इनके ऊपर अन्याय हो रहा है तो इनको सहना ही पड़ेगा। This is what I call the Ruth generation. और इनको मैं देख के कहता हूँ ये तो रूथ
वाली जनरेशन है, पीढ़ी है, रूत वाली पीढ़ी है। Ruth lost everything. और आपको जैसे पता है कि रूत ने सब कुछ खो दिया। Just like any other young girl, she got into marriage with dreams. और जो है उसको भी बहुत सपने शादी के, उसकी शादी हुई, उसको भी बहुत सपने थे। She lost her husband. उसका लेकिन पति ही मर गया। And then because of the famine, the family that she came into also didn't have anything. और एक अकाल की वजह से जो है उनके पास कुछ भी ना बचा। And then all that was left for her was just her mother-in-law. और उसके पास पता क्या बची? केवल उसकी सास बची। And her mother-in-law said, I cannot give you your future. और उसकी सास कहने लगी कि मैं तेरे को कोई भविष्य नहीं दे पाऊंगी। You know, I am in distress myself. मैं खुद इतनी जो है निराशा में पड़ी हुई हूँ। The only person that she was close to looked at her and said, I cannot help you. और जो है एक ही जो है एक व्यक्ति जो आपके पास बिल्कुल बैठा रहता है हमेशा, और वही ऐसे कहने लगे कि मैं तेरी बिल्कुल मदद नहीं कर सकती। How many times in families in India the parents look at their children and say, well, I cannot help you, I cannot give you a good life. और हमारे भारत देश में ऐसे कितने ही माता पिता हैं जो अपने बच्चों को देख के कहते हैं कि मैं तेरी कुछ मदद नहीं कर सकता। You have to look at it yourself. और तेरे को तो जो कुछ करना है अपने आप ही करना है। I don't have friends who can offer you jobs. और मेरे पास ऐसे दोस्त हैं कि तेरे को कोई नौकरी दे दे। I don't have money to spend for your wedding. और जो मेरे पास ऐसा नहीं कि मेरे पास पैसा भी नहीं है। I have no property करा दूं। I have no property to transfer to you. और जो मेरे पास ऐसी संपत्ति भी नहीं कि मैं तेरे को ट्रांसफर कर दूं, संपत्ति को दे दूं। Ruth was like that. और सच में रूथ का जीवन ऐसा ही था। But again, she was God's masterpiece as well. और लेकिन मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि वो भी परमेश्वर की एक श्रेष्ठ कृति थी। She comes home with Naomi. और वो जो है न्योमी के साथ आती है। For Naomi, it was her home country, it was her hometown. और नोमी के लिए तो वो जो है उसका एक घर था, वो उसका उसी का मतलब क्षेत्र था वो। Ruth comes as a foreigner. और वहाँ पर एक विदेशी के रूप में जो है रूथ उसके साथ आती है। She knows nothing about the town. और जो है वो एक उस मतलब जो है कस्बे के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। She knows nothing about the people. और वो लोगों के बारे में कुछ नहीं जानती थी रूथ। But Naomi sends her out to find something for food. और जो है नोमी जो है उसको रूथ को भेज देती कि भाई तू खाने के लिए कुछ ढूंढ के ला। She doesn't even know where to go. लेकिन उसको तो ये भी नहीं पता कि वो कहाँ जाएगी। So she walks out. और वो मतलब चलना शुरू कर देती है। Not knowing where she was heading to. और उसको ये नहीं पता कि वो कहाँ जा रही है। And God did not make a mistake. और परमेश्वर ने कोई गलती नहीं की। Because she walked straight into the fields of Boaz. और वो जो है मतलब खेतों में चलेगी बोआज के। The Bible says the steps of a righteous man are ordered by God. और कितने लोग जानते हैं कि जो है जो परमेश्वर के दास होते हैं उनके जो पैर सुहावने होते हैं। So there are times you're going to wonder what is next. और एक दिन होता है अब क्या? What do I do now? अब मैं क्या करूं? To whom should I go? मेरे को क्या किसके पास जाना चाहिए? But there was one thing that Ruth said very clearly. लेकिन रूथ ने उधर एक बात जो सबके सामने जो सही कही वो ये है। Your God is my God. कि तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर है। Your God is my God. तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर है। No husband. मेरा पति नहीं है। No father. मेरा कोई पिता भी नहीं है। No father-in-law. और मेरा कोई ससुर भी नहीं है। No homeland. मेरा घर भी नहीं है। No money. मेरे पास पैसा भी नहीं है। No land or property. मेरे पास जो है मतलब ना तो कोई संपत्ति है ना कोई जमीन है। But Ruth said, I have your God in me. लेकिन मेरे पास तेरा परमेश्वर है अपने अंदर। I have your God in me. तेरा परमेश्वर मेरे अंदर है। I'm not ready to let this go. I will hold on to him. और मैं उसको जाने नहीं दूंगी, मैं उसको पकड़े रहूंगी। And she went into a foreign land. और वहाँ वो उस विदेशी जगह में गई। And the Lord directed her to a man who was well known in the town. और परमेश्वर ने उसको उस जगह लेके गए उस व्यक्ति के पास जिसको सब लोग जानते थे। I do not know how many girls in the town wanted to marry Boaz. और मुझे वो हो सकता है कि कितनी सारी जो है लड़कियां होंगी जो बोआज से शादी करना चाहती होंगी। I do not know how many rich families in the town wanted Boaz to be their son-in-law. और मैं ये भी जानता हूँ कि जो है कितने ही लोग चाहते होंगे कि जो है उसको बोआज को अपना जमाई बनाना, कितने लोग जानते होंगे। You know, Boaz himself as an influential man, I do not know how many women or girls he would have seen. और जो है एक ऊंचे पद वाला जैसे बोआज व्यक्ति है, इसने पता नहीं कितनी जो है लड़कियों को देखा होगा। But he never took a second look at anybody. और उसने जो है किसी को नहीं देखा। But here was this woman Ruth. लेकिन यहाँ पर वो रूथ को देखता है। He looks again.
और उसको जो फिर दोबारा देखता है And then he asks, who is that? और वो पूछता है, अरे ये कौन है? The Lord knew what to do with Ruth. और लेकिन परमेश्वर जानता था कि आखिर रूत के साथ क्या करना The है, Lord knows what to do with your life. और परमेश्वर जानता है कि आपके जीवन के साथ क्या करना है। As I told earlier, just जैसे have मैंने पहले God in your बताया था, heart. जैसे मैंने पहले बताया था Have God in your heart. कि परमेश्वर को अपने दिल में रखो The right eyes will fall on you at the right time. और परमेश्वर की नजरें सही समय पर तुम्हारे ऊपर होंगी। Never, never believe that you have been forsaken. और कभी ये ना सोचे कि हमें तो ठुकराया गया है। And God did not choose Esther's line to be born. Jesus chose Ruth's line to be born. और पता है कि जो है मतलब यीशु मसीह ने जो है इस तरह की लाइन को नहीं चुना, When Jesus, लेकिन वो रूत की लाइन को चुना When जन्म Je- लेने के लिए। when Jesus planned out his genealogy, he said Ruth must be in that. और जब यीशु मसीह ने अपनी वंशावली बनाना चाही तो उसने जो एस्तर को ना चुन के रूत को चुना कि रूत इसके अंदर इस वंशावली में होनी चाहिए। Boaz's eyes fell on her. और जब सच में बोआज की नजरें उस पे आई God's eyes fell on her. और जब परमेश्वर की नजरें उस पर आई And her genealogy is talked about even today. और उसी की जो वंशावली आज तक हमसे बात करती है, Because you are God's masterpiece. क्योंकि आप परमेश्वर की जो है महान कृति हैं। Without the house, without the property, you are God's masterpiece. और आपके पास घर ना हो, आपके संपत्ति ना हो, उसके बावजूद भी आप परमेश्वर की महान Let's give them a कृति big हैं। hand as well. आइए इनके लिए भी तालियां You बजाएं। can go back to your seats. आप अपनी अपनी जगह पर जा सकते हैं। You know, I want to tell you very clearly. मैं आपको एक बात जो है एकदम स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूँ, It doesn't matter whether you're an achiever or an amateur or an influential person or an impoverished person. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप जो है मतलब एक जो मतलब Advice- अचीवर हैं, एक अपरिपक्व व्यक्ति हैं, एक जो है मतलब आपके पास कुछ भी नहीं है, ऐसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। Adversity is going to be a part and parcel of every individual. और हर किसी के जीवन में समस्याएं, दर्द, दुख आते हैं। Daniel was right there, but so many of them were jealous of him, they hated him. और दानियल जब उधर था तो कितने ही लोगों ने जो है उसको जो नफरत की, उससे जलन की, He constantly faced death. और उसने जो है मतलब यहाँ तक कि मौत का भी सामना किया। It wasn't easy for him at all. उसके लिए आसान नहीं था। You know, David was a shepherd boy, God anointed him, but again it wasn't easy for him. और दाऊद जो है एक जो है मतलब चरवाहा था, उसके लिए भी ये आसान नहीं था, Because the king himself conspired to kill him several times. क्योंकि जो है यहाँ तक कि जो राजा ने भी जो है दाऊद को मारने के लिए कई बार योजना बनाई। And when it is Esther, you know, her own life was at stake many times. और एस्तर रानी की जीवन में भी उसका भी जीवन कई बार जो ऐसे ही पड़ाव पर रहा। And when it was Ruth, the entire future was a big question mark. और जो रूत के जीवन में देखे तो सच में उसका पूरा भविष्य एक प्रश्न था। But God made use of all of them. लेकिन परमेश्वर ने हर एक का इस्तेमाल किया। Because as we read in Ephesians 2:10, अगर जैसे हम जो यहाँ पर अगर पढ़े इफिसियों के 2:10 में अगर हम पढ़ते हैं, you are God's workmanship and you are made for good works. तो आप परमेश्वर की महान कीर्ति हैं और भले काम के लिए बुलाए गए हैं। There is something good waiting to come out of your life. और आपके जीवन में कुछ भला आने वाला है। And for that good to come out, it is okay to be where God has placed us. और आपके जीवन में कुछ ऐसा भला हो, इसके लिए ये जरूरी है कि जहाँ कहीं भी आप हैं, आप वैसे ही रहें। Mobility and promotion is God given and God will give it at the right time. और आपका इधर उधर जाना या आपको जो है पदोन्नति होती है, आपकी अगर आपको पदोन्नति होती है, ये परमेश्वर कार्य है। But right where you are today, I want you to accept yourself. आप जहाँ कहीं भी आज हैं, आप इस चीज को स्वीकार करें। Never look at yourself and feel sorry. और अपने आप को देख के ये ना सोचे कि मैं ऐसा क्यों हूँ। Never look at yourself in the mirror and say, oh, this is not pleasing, this is not appealing, this is not looking good. और शीशे के सामने अपने आप को अपने आप को देख के ये ना कहें कि यार ये मेरे को देख के तो अच्छा नहीं लग रहा है यार, मैं ऐसा When तो नहीं हूँ। someone else is achieving or when someone else is in a position of influence, don't be jealous. और जब कुछ लोग जो है आगे बढ़ते चले जाते तो उनको देख के जले ना। God has plans for those in the first row and those in the last row. परमेश्वर के पास जो लोग पहली पंक्ति में बैठते हैं और जो आखिरी पंक्ति में बैठते हैं, उनके लिए भी योजना है। God has plans for millionaires and paupers. और जो है परमेश्वर के पास जो अरबपति लोग हैं, उनके लिए भी योजना है, और जो गरीबी रेखा में है, उनके लिए भी योजना है। You don't have to become somebody else to be useful to God. और आपको जो है कुछ ऐसा बनने की जरूरत नहीं है
कि भाई आपको परमेश्वर इस्तेमाल करे, You can be useful to God right where you are. और परमेश्वर आपको वही इस्तेमाल करेगा जहां आप हैं। And that is what we are going to ask God right now. और वही हम परमेश्वर से मांगने वाले हैं इस समय। We are going to tell Him, God, give me the grace to accept myself. और हम परमेश्वर कहेंगे, परमेश्वर तू मुझे ये अनुग्रह दे कि परमेश्वर जैसा मैं हूं मैं अपने आप को वैसा स्वीकार कर सकूं। We are going to say, God, help me to be thankful for where you have placed me. परमेश्वर मुझको होने दे कि प्रभु मैं आपको धन्यवाद दे सकूं कि जहां कहीं भी मैं हूं। And we are going to tell God, Lord, I'm not going to complain about the things that I don't have. और परमेश्वर से कहें कि परमेश्वर आज से परमेश्वर मैं किसी की जो है मतलब कंप्लेन नहीं करूं कि मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है। I'm going to be thankful for the things that I have. और मैं उसके लिए धन्यवाद दूंगा कि जो चीज तूने मुझे दी है। And that is what the Lord is going to bless. और यही परमेश्वर आपको आशीष करेंगे इस बात पे। That is what the Lord is going to multiply. और परमेश्वर इन्हीं चीजों को और दुगना तिगुना चौगुना कर देंगे। That is what the Lord is going to make use of. और परमेश्वर इन्हीं चीजों का इस्तेमाल आपके जीवन में करेंगे। Would you just quickly stand with me, please? और क्या आप मेरे साथ जो जल्दी से खड़े हो जाएंगे? We are going to spend a little while in prayer. और हम जो है प्रार्थना में चलेंगे। And I want everyone to be a part of it. और मैं चाहता हूँ कि हर कोई जो है प्रार्थना में इसका हिस्सा हो। In just a few minutes, I'm going to wind up. और जो है कुछ ही क्षणों में मैं बंद करने वाला हूँ। But before that, we are going to reach out to God. और उससे पहले कि हम परमेश्वर की ओर चलें। Because I believe right now the Holy Spirit is able to bring a sense of comfort and confidence right into our hearts. और मैं ये विश्वास करता हूँ कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर एक साहस उत्पन्न कर रही है। So all our feeling of worthlessness and all our feelings of insecurity will just go away from us. और जो भी हमारे अंदर जो ये एहसास आता है कि मैं निकम्मा हूँ वो सब निकल रहा है इस समय। That in spite of all things that define our life, we will be able to say, I am God's handiwork, I am God's workmanship. और इस समय हम सभी कहें अपने अपने मन में कि मैं परमेश्वर की महान कृति उसके हाथों की रचना हूँ। Close your eyes with me. और सभी लोग अपनी आंखों को बंद करें। I want every eyes closed. मैं चाहता हूँ हर एक व्यक्ति अपनी आंख बंद So करे। once again, I want you to pray. और मैं चाहता हूँ कि आप अपने मन में एक बार प्रार्थना करें। You know, in a little while from now, we are going to pray for each other, but before that, we are going to pray. और जो है अभी हम एक दूसरे के सब लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। You know, once again, you take your right hand and keep it close to your heart. और हम चाहते हैं अपने सीधे हाथ को जो है अपने दिल के बिल्कुल पास रखें। And the first thing that we are going to pray is, Lord, I'm not going to complain anymore for what I don't have. और मैं सबसे पहली जिस चीज के लिए हम प्रार्थना करने वाले वो ये है कि परमेश्वर मैं आज से कंप्लेन नहीं करूंगा जो चीज मेरे पास नहीं है। Open your mouth and say, Lord, I will not complain about how I look. I will not complain about the money that I don't have. I will not complain about the wisdom or the expertise or the skill or the talent that I don't have. I am ready to accept myself as you have made me. परमेश्वर आज से मैं प्यारे परमेश्वर अगर उन चीजों के लिए कंप्लेन नहीं करूंगा जो मेरे पास नहीं है। मेरे पास अच्छी बुद्धि नहीं है, मेरे पास अच्छा पैसा नहीं है, मेरे पास जो अच्छे टैलेंट नहीं है, मैं उनके लिए कभी कंप्लेन नहीं करूंगा। मैं जैसा हूं मैं वैसा परमेश्वर तेरे पास आ रहा हूं। Come on, everyone pray. और हर कोई प्रार्थना करे, हर कोई। You know, this is the time to reach out to God. और ये समय है कि हम परमेश्वर के पास पहुंचे। This is the time the Lord is going to take away things that spoil your life. और इस समय जिन चीजों ने आपके जीवन को खराब कर दिया उन चीजों को परमेश्वर ले रहा है आपसे। And God is going to bring in fresh things that will transform your life. और परमेश्वर आपके जीवन में नई चीजें लेकर आया जिससे आपका जीवन बदल जाए। God is going to give you a new sense of worth. और आपके जीवन में परमेश्वर लेके आ रहा है कि आप आप एक योग्य व्यक्ति हैं। God is going to add self-esteem to you. और परमेश्वर आपके जीवन में आत्मसम्मान लेके आ रहा है। That you are going to be happy about yourself. और आप अपने लिए खुश हो इस बात पे। Just say, Lord, I accept. और आप परमेश्वर कहें, परमेश्वर मैं स्वीकार करता हूँ। I accept where you have placed me. और परमेश्वर मैं स्वीकार करता हूँ जहाँ तूने मुझे रखा है। Thank you, Lord. परमेश्वर तेरा धन्यवाद। Just say, Lord, I thank you for my parents. प्रभु मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ अपने माता पिता के लिए। I thank you for my family. मैं अपने परिवार के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। I thank you for my hometown. मैं अपने घर के लिए, अपने कस्बे के लिए धन्यवाद देता हूँ। I thank you for the school. मैं अपने विद्यालय के लिए धन्यवाद देता हूँ। I thank you for whatever you have given me right now. और जो भी तूने मुझे दिया उसके लिए मैं Just say धन्यवाद देता thank you, हूँ। Lord. Thank you, thank you, धन्यवाद दे, thank you. धन्यवाद दे, धन्यवाद दे। Just say, Lord, give me a clean heart. परमेश्वर कहे कि परमेश्वर मुझे साफ हृदय दे। Just say, God, give me a heart that pleases you. परमेश्वर मुझे ऐसा दिल दे जो तेरे को जो मन भावना हो। Just say, God, make me a person after your own heart. परमेश्वर मुझे ऐसा व्यक्ति बना जो तेरे दिल के एकदम करीब हो। And the Lord will do it. और परमेश्वर ऐसा You're not forgotten. आपको जो नकारा नहीं गया है। Again, I tell you, you're not part of mass production.
और मैं फिर से बताना चाहता हूँ कि आप जो है एक मास प्रोडक्शन, God- ऐसे ही बनाए हुए लोग नहीं है, मास प्रोडक्शन वाले नहीं है। God knew who you are. परमेश्वर जानता है कि आप कौन हैं, He still knows. और वो जानता है, He still has a plan for you. और अभी भी उसके पास आपके लिए योजना है, And He's not going to get tired. और वो थकने वाला नहीं है, And He will bring to pass everything that He has planned for your life. और वो हर एक चीज जो आपके जीवन में उसने योजना बनाई वो लेके आएगा। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। I'm just going to give you one more minute. और मैं जो है आपको 1 मिनट और देना चाहता हूँ। This time what you're going to do is just you turn towards one person next to you. और आप जो है अपने जो पड़ोसी के पास जो है मुड़े, You know, just turn face to face. और उसका जो चेहरा देखिए आमने सामने, And I want you to hold both hands. और मैं चाहता हूँ कि आप दोनों हाथों को उनके पकड़ लें, And then I want you to pray for the other person. और मैं चाहता हूँ कि आप जो दूसरे व्यक्ति के लिए You प्रार्थना prayed करें, for yourself now. और आप अपने लिए प्रार्थना करें। Now you're going to pray for the other person. आप पहले आपने अपने लिए किया, अब दूसरे व्यक्ति के लिए प्रार्थना You करें। know, whatever good things that you... Thank you, Lord. Thank you, Jesus. धन्यवाद If प्रभु you- यीशु मसीह।